So today we will start a collection topic. Okay, one of the famous topic you can say, and most important topic. So we are talking about collection API. Okay, sometimes API, sometimes we call this collection framework as well. Okay, whatever you understand. So both are same. It's not different. Like what's the difference between API or framework? It's more or less same for now. Once we get our own APIs, then we will understand it. Framework is something which gives us some set of solutions, and you don't some set of solutions which are ready-made. Of course, you don't have to create them or build them for your own purpose. They are already present. सर रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ जी, on. ओके, तो इस केस में क्या होगा, हम बहुत सारी क्लासेस चेक करेंगे जो कि इस एपीआई में है। इवन वो भी देखेंगे किस पैकेज में। ओके, बेहतर मैं ये मेंशन करता हूँ। दिस होल थिंग इज प्रेजेंट इन जावा, not Java, Java.util. Okay, so collection API or framework, or I'll say collection classes are present in package. Okay, in short, I'm writing package. So let's see first of all the package. As I said, let's close this. So expand the GRE library and runtime library. I said java.util, java.u, u, it goes up. Java.util, and if I expand this, you can see lots of Java classes. All these are Java classes and belongs to collection framework, and you can see lots of classes are there. If you see the name HashMap, HashSet, you must have heard these names in data structure. Enumeration, enummap, dictionary, queue, DQ, linked HashSet, linked list, list, um, random classes, sublist, timer, vector classes, weak HashMap. So tree map, tree set, all these classes belongs to util package, and combinedly we call them java.util, or you can say collection framework class. So today we will start that, and what it gives us, like why we are learning it, what's the impact. It gives us ready-made solution. It gives us ready-made solutions for DS. Okay, solution for what? For data structures. So you can think of whatever data structure you have used or heard or programmed or practiced, theory wise or practical wise, they are present here. You can talk about list, you can talk about queues, you can talk about maps. Lots of searches are there, search techniques like binary search. And binary search is actually implemented in multiple methods so that you can also see. I'm just giving you some names, and later when we see, I'll definitely show that. So binary search is also there. So there are classes which are supporting all these features. I'll say for example. So we will use some of the classes and learn about it. So before jumping over to, of course, we will not start coding. At least we need to get some idea, because we are talking about some package here. And when we talk about any package, we have to first of all talk about some interesting thing about it. So and before that, we have a concept of arrays. Now we have collection. So anyone knows the difference between these two? Which one is, because we already have a concept of array, but so why this was introduced? One big difference I will give you: data structure. Because array is just a concept which stores same type of data in a linear sequence, or maybe in different sequence, but it's same type. But here it gives some more than that. Whatever array is providing, that feature is already there, but it gives lots of other features which is definitely missing here inside this array class. So what do you have to figure out? Difference between array, this collection. Okay, that's one question. I'll give you lots of questions here, and you guys have to figure out its theory part. This topic is full of these kind of questions, so I'll keep adding as soon as we cover some topics. So okay, so before jumping over to the collection topic, I just want to highlight one more thing here. Let's say collection
framework hierarchy, like we saw, remember, exception hierarchy. Same way, we need to see this images. One thing I can create my own, but why to waste time? So let's just pick this image from the web. Let's see what it has. It's not that big. Why? This is better. Let's pick this much. So all these boxes again, they are, what do you call that? Java classes from util package. Okay. So you can see the top heading. It clearly says collection framework hierarchy. So if you see at top, are you guys able to read this thing? Is it readable? Yes, sir. This is readable. You can read, okay? Okay, fine. Yes, sir. Fine. So you can see there's some red box, some green box, some yellow, and some blue boxes. So blue for okay, let me do it different way. Blue for classes. Okay, and this orange color is for interfaces. Maybe orange for fine. So that's its detail. Orange for classes. Green is for any idea? Parent interfaces. Interface. Parent interfaces. Okay. So collection and map. These are two parent interfaces. And this blue red box is for one, you can say, okay, just leave it for now. Let's ignore it, but I'll keep that in my image for now because it supports what you call that some inheritance and the concepts of what we learned in um, OPS concepts. Okay, so we have some idea what these boxes are. Let me move it here a little bit. Okay, so you can see we have a collection interface. It clearly says then list interface, then array list, and then we have some classes. Some are extending this, some are extending this interface, and lots of stuff going on. And this is a complete different structure. This is, you can see it's not connected even to anything. It has its own diagram. Okay, so we have a map here parallelly, and it's again a part of collection framework. You cannot say it's not. It is a part of, but how it's different, we will see when we write code and learn about it. Okay, so thing is we are not going to cover all classes because that will take lots of time. We have to cover this class this topic within 3 to 4 days max. So we will see ArrayList, one of the mostly used class, then HashSet, then I'll show you tree set here, then HashMap and tree map. Okay, I'll cover in my class 5 classes. Rest of the class you guys can use by own, and definitely I'll give you some homework so there you have to cover it. So all these selected boxes you guys have to practice later, and I'm going to cover these 5 boxes in my class as for example, or example for these classes. Okay, so even before starting to this, we need to understand this thing. So that means we have to cover list interface, set interface, map interface, and sorted interface. Theory wise, not much I'm going to cover. You guys have to cover it, okay? But if you are able to and comfortably, you can write some code so you can understand its theory as well. Don't expect if you won't go theory wise, you can understand. If you write a code, when you can see some difference, definitely you can figure out the working of it, how it actually works. Because you are actually writing a code, and when you write code, you will execute some code.
some piece of lines are executing, and then you can see definitely see the difference. Even someone who actually learned it or was practicing it just by remembering all the stuff, it won't work. So these boxes we are going to cover in our class. More or less, not much in difference, but definitely we'll see. Okay, so this is also clear what we have to. So let's start with collection. What this is and what is it? So we have a collection interface. So first thing is it is root or parent interface, right? That we can see from that image. So what it provides, what feature it has. So I will open the documentation of it. Okay, what I'll do, let's open any Java class because I need to just see the documentation. That's the best way. Instead of searching all this, you can simply say collection. Okay, stuck. From where? As we already know that this is from util package. So there it is. You can see three collections are there. So you have to figure out which one. Not from MySQL, definitely not. You have to pick from java.util. So import and open this. There it is. Public interface extends attribute. I just want to highlight this image and this thing. That's why I left it. You can see from this image, I mean this from this document, we can clearly see this collection interface actually extending one more interface. So it's not the parent one, but definitely it is extending something. Code goes here. So I can say parent wise, table is a parent of collection interface. Red is the parent of collection interface. But still we call collection interface as a root interface. Collection. Okay, fine. And that's from the document. Document is a good place if you can read it. So it's really good. Okay, fine. Okay, let's head back to document. So it says public interface collection. Don't worry about this E. Even I don't know what is E right now. I just know public interface collection extends something. That's how it works. It won't say implements. If we have two interfaces, interface cannot say implement. If we say implement, that means that interface has to implement all the methods. It simply says extend. So whatever method it has, it will simply inherit it without giving the implementation. So if interface says implements, so it has to give the implementation. That's why extend is used. I've already explained before. You guys will ask, okay, why we have extends keyword instead of implements. Implement says you have to implement it. Interface cannot give the implementation. I hope you guys are getting it. Let me know in case not. सर रिपीट कर दीजिए एक बार और जब दो इंटरफेस होते हैं, when we have interfaces, let me explain this way. एक्चुअली पूछना क्या चाह रहे हो? रिपीट तो मैं तब करूँ जब समझ नहीं आया होगा. मनन बताइए एक्चुअली क्या समझ नहीं आया आपको? सर यही एक्सटेंस और इम्प्लीमेंट्स में आपने जो भी बताया कि क्यों नहीं हुआ अच्छा, let's suppose we have interface A and we have interface B. So let's do this way. So Java rule says if we have interface B, so what this will do, it will say okay, fine. If I have to implement, extend all the features from there, I need to say extends A. तो जब भी कोई इंटरफेस दूसरे इंटरफेस की फीचर चाहिए, उसको चाहिए होगी, तो वो एक्सटेंड्स कीवर्ड ही यूज कर सकता है. थिंक अबाउट, हमारे पास एक क्लास है x, एक इंटरफेस है y. अब क्लास x कहेगा, इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से. अब सिनेरियो क्या है कि क्लास x है, इसको फीचर चाहिए, इसको इनहेरिटेंस शो करना है, तो ये करेगा एक्सटेंड्स y.
राइट। और जो भी मेथड्स इंटरफेस वाई के अंदर पड़े होंगे सबको ये ओवरराइड करेगा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन देगा। सॉरी माय बैड, इम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पर क्लास एक्स क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है वाई को। इसका मतलब ये है कि जो भी फीचर वाई के अंदर पड़े हैं वो सबको इम्प्लीमेंट करेगा एक्स क्लास में, तभी ये काम कर पाएगा। अब इन केस अगर हम यहाँ इसको ऐसे लिख दें, विच विल बी रॉन्ग बट लेट मी राइट इट। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ मैं, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो बी इंटरफेस है वो ए के सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा, उनकी बॉडी देगा, उनके डेफिनेशन देगा, बट इंटरफेस में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वाई व्हेन इट कम्स टू इनहेरिटेंस between two interfaces we should use extends keyword. So this one is wrong, this one is wrong, right? This one is wrong. Wait. Huh. Okay, correct one is this one. Likewise, this one is correct. So think about logically. If you have done OOPS classes, so definitely you can understand it. What I'm saying here, कि तो इंटरफेस है, उनको रूल इम्प्लीमेंट करना है या कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो वो एक्सटेंड यूज़ करेंगे, पर अगर क्लासेस है तो उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि उसके मेथड की डेफिनेशन दे सकें, इम्प्लीमेंटेशन दे सकें। सो इसलिए यहाँ पर एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ हुआ है। अब कलेक्शन इंटरफेस की थोड़ा सा मेथड चेक करें। इंटरफेस है तो मेथड्स भी होंगे। अब देखिए सारे मेथड्स सिर्फ डिक्लेयर्ड है। साइज इज एम्प्टी, कंटेन्स, एट्रेटर। मैं इनमें से कुछ मेथड पिक कर लेता हूँ जो हम एक्चुअली यूज़ करने वाले हैं आज देखने के लिए। नेक्स्ट पेंट खोलते हैं। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा इसके डॉक्यूमेंट्स और देख लेते हैं। कलेक्शन इंटरफेस, द रूट इंटरफेस इन द कलेक्शन हायरार्की। ओके, दैट वी ऑलरेडी नो। एक चीज़ और, इन केस अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हो रही या फिर इसका व्यू या फिर कहते हैं ना कि इसका कैसे इसको यूआई से चल रहा है वो अच्छा ना लगे, तो आप एक काम और कर सकते हो। सिंपली नेट पे जाइए, आपको क्या करना है, कलेक्शन इंटरफेस जावा डॉक, ये लिखना है आपको। तो आप सीधा ओरेकल की साइट पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आप इस क्लास का या इंटरफेस का डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। जो भी यहाँ लिखा हुआ एग्जैक्टली वही लिखा होगा जो यहाँ लिखा होगा। क्या लिखा फर्स्ट लाइन, द रूट इंटरफेस इन द कलेक्शन हायरार्की, द रूट इंटरफेस इन द कलेक्शन हायरार्की। कलेक्शन represents group of objects known as its element. A collection of represents a group of objects known as its element. सेम थिंग यहाँ पर, तो या तो यहाँ से पढ़ लो या फिर साइड पे जाके कर लो। पहला स्टेटमेंट इज ग्रेट, इट वी ऑलरेडी नो दिस थिंग that this is actually a root interface. Okay, next is what? Next we need to see a collection. Let me pick from here because it has some tags. One thing is, because when we say collection, that means it has some bunch of data, right? We haven't discussed about it. अभी डिस्कस कर लेते हैं। A collection represents a group of objects known as its element. तो कलेक्शन क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हम क्या कर रहे हैं, उसका कलेक्शन बना दे रहे हैं। जैसे एरे में क्या होता है, एरे में बहुत सारे डेटा होते हैं, इंट टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के, कैरेक्टर टाइप के। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं इंट का या एरे बना रहे हैं स्ट्रिंग का। सेम टाइप यहाँ पे पॉसिबल है कि हम कलेक्शन बना सकते हैं इंट का, कलेक्शन बना सकते हैं स्ट्रिंग का, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड दैट इज नोन एज एलिमेंट्स। ये एलिमेंट टर्म मैं बहुत बार यूज करने वाला हूँ। तो एलिमेंट समझिए कि एलिमेंट मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें जो उस कलेक्शन के अंदर है। Think about, we have this collection and it has multiple objects. So one object, two object, three object, five object of same type. So you can say it's a collection of objects. So these are collections. All these are Java objects. And this is known as collection objects. Collection of objects. Fine. So you can just visualize it that it is some kind of container which can hold multiple objects. Okay. So that's the object, and you can say these Java object are also known as or elements of
collection. Fine. So it's totally up to you. Either you want to call Java objects or simply objects or elements of collection. Okay, so now we know 2 points. It's a root interface and it represents a group of objects. Okay, some collection this, it provides this, manipulate them. This interface is typically used to pass collection around and manipulate them where maximum generality is. इतना बहुत है. So that's the third point, that this provides a group of objects which you can manipulate. Okay, yep, that's possible. We have a data, so definitely we want to change it some point of time. So that's also possible when you're working with collection interface. Okay, and okay, then later it has some other stuff, so we don't need to worry about it. So that's some kind of you can say discussion of collection interface. Next, what methods, right? We need to see the methods. So let's see methods. So we have multiple methods. I'll just select some of the mostly used methods in collection framework. Mostly used, like add method, add all, size collection, how many object it has. So in arrays we have a length, here we have size method. Then we have contains, then we have remove, we have remove all, we have retain, and of course retaining rows also there, and one is iterator. Okay, this is one of the mostly used method, iterator, the last one, eighth one. If I scroll down, these are the methods: add all, clear. Okay, let me add clear as well. Clear is also a method. Okay, then there it is. Then we can say ninth. Then hash code is empty. Yes, is empty also one of the most used method. 10th is empty. I'm writing it. That doesn't mean I'm going to write every single method example for you. You guys have to practice it. Okay, is empty. Remove all. Retain all. Retain is just retain. Did I say retain? Yep, it's retain all. Then size, splitter, stream. Stream is that method which will take us to stream API. I'll write it here, but we won't discuss it now. When we start stream API, then we'll practice it. Okay, so these are some of the methods. I have just taken 11. And if you notice, you can see the functionality except ninth one and the last one. Right, let me just replace it here. So till 9th, I guess you can guess it. Add, size for check, length, contains, whether that element is there or not, removing for other removal elements, retaining, just retain all those elements and remove the extra one. Retain means इस ऑब्जेक्ट को बचा के रखना है, बाकी सबको उड़ा देना है, ऐसा. Clear, clear कर देगा आपके collection को. Is empty, will check whether you have data or not in that collection. Iterator for processing or scanning the elements. Stream API, that's a different thing. Discuss about later. So method name से काफी हद तक clear हो रहा होगा what these methods will do. नहीं है तो फट से पूछ लो. तो कलेक्शन का काम समझ में आ गया और मेथड्स के नाम समझ में आ गए. इसके अलावा कोई डाउट है इसमें? नो, ठीक है. नो सर. ठीक है, तो मेथड समझ में आ गए. कलेक्शन थोड़ा सा आइडिया समझ में कि ओके ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है और उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं और typically used to pass collection and around and manipulate them. और that's how it looks like if you have to visualize it. ऐसे कुछ दिखता है ये. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि अगर मैं वापस हायरार्की पे जाऊँ तो कलेक्शन तो कवर हो गया, पर प्रॉब्लम ये है कि ये इंटरफेस है, मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ? तो हम थोड़ा सा नेक्स्ट जाएंगे इसके नीचे बिलो हायरार्की पर.
लिस्ट पर। कलेक्शन में लिस्ट है, बट अगेन दिस इज इंटरफेस। जल्दी से लिस्ट पे देख लेते हैं सेम तरीके से। लिस्ट क्या होता है? इट इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन फॉर दोज लिस्ट यू हैव सीन इन डेटा स्ट्रक्चर। तो मैं फिर से डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या है। देखो सर, सीधी बात है कि डॉक्यूमेंट यूज करोगे तो समझ आएगा। मैं आपको डॉक्यूमेंट पढ़ना सिखा रहा हूँ अभी यहाँ पर क्या हाउ इट वर्क्स। लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स बेस्ड है, ठीक है। इसमें इंडेक्स चलते हैं, इंडेक्स पेज, ओके। नेक्स्ट, whatever method it has, the collection interface has, it has all the methods from the inheritance, right? We know this thing. collection के पास अगर 15 methods हैं और ये list interface इसको extend कर रहा है, तो that means all the methods from this interface gets inherited to list. So list के बाद खुद के method है वो index based होंगे। बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। बाकी से डॉक्यूमेंट चेक करते हैं हम। अभी क्या करेंगे, वापस जाएंगे साइट पर। यहाँ पर लिस्ट भी कहीं होगा, ये लिस्ट क्लिक करेंगे। आपके आ गया पब्लिक इंटरफेस लिस्ट एक्सटेंड्स कलेक्शन। ई को इग्नोर कर दो, ये भी कुछ नहीं है मान लिए। एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑल्सो नोन एज सीक्वेंस, ओके दैट्स वन गुड थिंग। इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर्ड क्या है बताऊंगा जब कोड लिखेंगे हम लोग। फॉर नाउ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, जिसको सीक्वेंस भी कहते हैं। व्हेन वी विल सी दिस व्हेन वी राइट एग्जांपल। हाँ, दिस यूजर कैन द यूजर कैन एक्सेस एलिमेंट्स बाय देयर इंटीजर इंडेक्स, राइट। आई कैन पुट दिस बिलो हियर। इंडेक्स बेस है तो डेफिनेटली अगर आपको कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप इंडेक्स दीजिए एंड यू कैन इजीली एक्सेस दैट एलिमेंट। ओके फाइन, व्हाट एल्स वी कैन फाइंड। list typically allows duplicate elements. That's one big feature you can say, or one major difference from other collections. List typically allows duplicate elements. Or done, this is also done. Typically allow multiple null elements if they allow null elements at all. It is तो इसको छोड़ते हैं थोड़े के लिए, पर इतना कर लेते हैं if they allow। Okay, but again this is condition based, so you can put it here. So you can have null elements as well. That's ठीक है। सो वी हैव अ लिस्ट विच इज इन इंडेक्स पेज। एक ऑर्डर कलेक्शन होता है, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं। लिस्ट टिपिकली अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट्स एंड ऑफ कोर्स इट अलाउज मल्टीपल। आ जाते हैं यहाँ पे, फिर नल एलिमेंट्स ले देता हूँ, इट डोंट कंफ्यूज यू। सो टिपिकली अलाउ नल एलिमेंट्स एज वेल, ठीक है। ओके वेल एंड गुड। तो हमें थोड़ा सा ओवरव्यू मिले कि लिस्ट होता क्या है। एक इंटरफेस है और उसकी ये फीचर्स हैं। जब भी हम कोई भी क्लास या इंटरफेस डिजाइन करते हैं अपने प्रोग्राम के लिए या फिर एपीआई के लिए, तो वी नीड टू थिंक अबाउट कि हम एक्जैक्टली करने क्या जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब एक इंटरफेस देखा है जिसकी ये फीचर्स हैं। तो ये फीचर्स हम कैसे देंगे? थ्रू मेथड्स। सिर्फ एक एम्प्टी इंटरफेस अगर मैं ऐसे लिख दूँ, पब्लिक पब्लिक इंटरफेस लिस्ट, और फिर ऐसे कर दूँ, तो क्या इसके अंदर फीचर आ गया? क्या मैं कह सकता हूँ कि इस लिस्ट में इंडेक्स है या फिर ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ कर रहा है, क्या इसके अंदर नल एलिमेंट्स अलाउड है? ये नहीं हो सकता जब तक आप इसके अंदर की मेथड्स डिक्लेयर करो। मेथड्स के थ्रू हम ये फीचर्स या प्रॉपर्टीज क्लास या इंटरफेस के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। तो मेथड्स देखने पड़ेंगे, तो ऑलमोस्ट सारे मेथड सेम है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या मिलेगा आपको? इंडेक्स का। ये ऐड आ रहा है कलेक्शन इंटरफेस से, ऐड एलिमेंट, ई फॉर एलिमेंट। नेक्स्ट मेथड लिस्ट का है कि ऐड करेगा विद इंडेक्स। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपकी डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि एक एज्यूम करो एक लिस्ट है, उसमें आपको एलिमेंट किसी नोड में एंटर करना है, वहाँ पे नोड प्लस डेटा होता है, तो सेम यही वहाँ पे कर रहा है वो। अगर सी में मोस्टली पढ़ा होगा टॉपिक, सी में मोस्टली कवर किया जाता है चीज़। ऐसी ऐड ऑल है, फिर ऐड ऑल इंडेक्स बेस। अभी टाइम से करने में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ टाइम से मतलब नहीं, मेथड्स का नाम है वो आप खुद भी देख सकते हो। एड ऑल क्लियर कंटेन्स ऑब्जेक्ट कंटेन्स, बाकी सारे मेथड सेम हैं। बस कहाँ का जहाँ इंडेक्स मिल गया वो लिस्ट का मेथड है। बाकी देखो ये सारे इंटरफेसेस कलेक्शंस आए हुए हैं, सॉरी सारे मेथड्स कलेक्शन आए हुए हैं। यहाँ पे रिमूव का एक इंडेक्स बेस्ड अप्रोच भी है कि अगर कोई एलिमेंट रिमूव करना है इंडेक्स से तो रिमूव हो जाएगा। कलेक्शन में था कि आपको वो एलिमेंट ही पास करना पड़ेगा, जो एलिमेंट डिलीट करना है एलिमेंट का नाम दो तब वो डिलीट होगा, पर सर इंडेक्स से डिलीट हो सकता है। जी। सर सर एक ऐड ऑल वाला दोबारा रिपीट करो। एड ऑल क्या करूँ? ऐड ऑल को दोबारा रिपीट, मतलब इसमें हम पूरे
एक ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, मतलब। मैं प्रोग्राम दिखाऊंगा भाई, डोंट वरी। अभी हमारे पास इंटरफेस है ना, मैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊं? इसलिए मैं कोड लिख नहीं रहा, मैं इसलिए मेथड्स पढ़ रहे हैं। अभी थिंक अबाउट, क्या मैं लिस्ट का इंटरफेस, लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ विपिन? ये इंटरफेस है। सर इसे एज ए पेरेंट रख सकते हैं, इंटरफेस नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट बना सकते। डेमो है ना, तो इसलिए हम सिर्फ यस सर, मेथड्स डेमो। देख रहे हैं। जैसे ये क्लास में देखी कॉन्क्रीट क्लास, हम फर्स्ट एग्जाम्पल शुरू कर देंगे बनाना। हमारे पास अभी क्लास है, हमें तो बस ये पता था कि कलेक्शन एक इंटरफेस है और उसका और उसके फीचर्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, पर उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हम आगे गए लिस्ट पे, लिस्ट का भी सेम फीचर है कि एक इंटरफेस है, उसके खुद की फीचर है। इसका खुद का एक फीचर क्या है, इंडेक्स मिलता है इसके अंदर, और डुप्लीकेट अलाउ करता है, नल भी अलाउ करता है, पर हम इसको एग्जाम्पल कर नहीं सकते। तो मेथड्स हम इसको देख रहे हैं कि मेथड्स इसके सारे, जहाँ पे भी इंडेक्स होगा वो लिस्ट का है। अब इसके बाद अगेन अगर हम हायरार्की में जाए तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हम लिस्ट का, क्योंकि इंटरफेस है ये। तो एक हायरार्की नीचे आते हैं, अब हमारे को मिला एरे लिस्ट, और ठीक है ये क्लास है। तो इस क्लास की खुद की कोई फीचर नहीं है, इसने बस क्या करा, लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया। दैट मीन्स एज पर दिस डॉक्यूमेंट, इसे बंद करो। सो एज पर दिस डॉक्यूमेंट वट एवर मेथड यू कैन सी हियर, 10 15 whatever methods these are, all these are implemented in ArrayList class here. So public interface ArrayList extends some abstract class and implements list interface and some more interfaces. And if you guys notice, there is a serializable interface. मनन, serializable का काम क्या है इसमें? Why we use serializable interface? सर हम सीरियलाइजेशन तब करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में या फिर बाइट्स में कन्वर्ट करना होता है। हाँ, तो डेट मीन्स ओके, थैंक्स मनन। तो इसमें क्या मतलब हुआ कि जो एरलिस्ट क्लास है वो भी सीरियलाइज कर सकते हैं। कोई भी क्लास इंप्लीमेंट कर रहा है सीरियलाइजेबल इंटरफेस को, दैट मीन्स हम उसके ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके नेटवर्क पे, डेटाबेस पे या किसी फाइल सिस्टम पे सेव कर सकते हैं। वो फीचर हमको ऑलरेडी मिल रहा है, एंड दैट्स क्वाइट कॉमन मोस्टली, सो दैट्स फाइन। तो हम मल्टीपल इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसको सेव कर लेते हैं पहले तो 5। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक मिल गया एरे लिस्ट क्लास का। ये को हटा देता हूँ, रीडेबिलिटी बढ़ेगी। तो वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मल्टीपल इंटरफेसेस, दैट्स व्हाट टिपिकली योर क्लास लुक्स लाइक। ये अपनी क्लास नहीं है, ये जावा लाइब्रेरी क्लास है कलेक्शन की बेसिकली। इसका एक फीचर है, मतलब वो ऑलरेडी लिस्ट से आया हुआ है, पर फिर भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है रीसाइजेबल एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट इंटरफेस। सो लिस्ट का एक कर रखा है इसने फीचर, जो कि कहते हैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया कि रीसाइज हो सकता है। कौन सा है? एरे। So if you know the array, you can easily connect with ArrayList. So it's like a combination of array and list. Array हमें पता है क्या करता है, list हमने अभी जस्ट देखा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ArrayList, एंड दैट इज रीसाइजेबल। दैट मीन्स जैसे ही इसमें एलिमेंट आएंगे तो अपने को रीसाइज करके अपना साइज इंक्रीज कर लेगा और एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट हो जाएंगे। कभी ये नहीं आएगा कि मेमोरी फुल होगी, एटलीस्ट लिस्ट में कम नहीं होगा। और बिलीव मी इन योर प्रोजेक्ट, अगर आपके पास ऑप्शन है तो 10 में से 9 बार आप एरलिस्ट यूज कर रहे होगे, एक बार में आप मैप पे जाओगे। ArrayList और HashMap, these two are mostly used collections throughout। अभी तक मैं जो 10 साल में इतनी क्लासेस यूज कर रही है, मोस्टली यही देखी है मैंने प्रोजेक्ट्स में। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं तब हम दूसरे इंटरफेस या फिर दूसरे क्लासेस की तरफ जाते हैं, पर मोस्टली आप इन्हीं क्लास पे डील करोगे। तो जितना हो सके थ्योरी इनके बारे में गेन कर सकते हो कर लो। मल्टीपल चैनल से उन पे जाओ, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं और एक के खुद के हैं, उनको पढ़ो। कि इन दो इंटरफेस को अच्छे से रट लो कि करते क्या है। इंटरव्यू में इतने क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। कलेक्शन बोलते वो सीधा बोलेंगे कि आपने किस इंटरफेस या किस क्लास को यूज़ किया है। आप तो फट से बोल दोगे मैं तो लिस्ट यूज़ किया है और उसका एक इम्प्लीमेंटेशन था एरे लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एरे लिस्ट काम कैसे करता है। अगर आपने पढ़ा होगा अगले सेकंड आप जवाब भी देना शुरू कर दोगे। तो एरे लिस्ट और हैश मैप, ये इतनी बार पूछा जाता है कि मतलब समझ लो कि अगर आपने इनका से कर दिया और आपके बाकी क्वेश्चन गलत हो गए तो मेरे जैसा इंटरव्यू होगा तो आपको रख लेगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जैक्टली कलेक्शन कैसे काम करती है। उसके कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ये नहीं कि आपको ये नहीं पता ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। सो बट दीज टू हैव यू कैन से हैवी वेटेज इन कलेक्शन एपीआई। उसके बाद बाकी टॉपिक्स आते हैं। इनिशियली आप इतना बता दोगे लिस्ट और एरे लिस्ट और हैश मैप क्या होते हैं, तो समझ लो कि आपके ऑलमोस्ट चांसेस पक्के हो चुके हैं कि आप जरूर हाईलाइट हो चुके होगे अपने इंटरव्यू में। Okay, so first feature, or that's one good feature about ArrayList is it is resizable. It regrows itself as soon as its size going to be, or you can say its capacity is going to be filled. अगर इसकी 10 साइज है और जैसे 10वां एलिमेंट इसमें जा रहा होगा तो ये फट से अपना साइज को ग्रो कर लेगा, ये 15 या 20 कर लेगा, जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन देंगे।
ये रीग्रो करता रहेगा अनलेस यू स्टॉप एंटरिंग द एलिमेंट्स। तो रन टाइम पे ये रीग्रो कर लेता है, दैट्स वन फीचर। थिंक अबाउट, क्या एरे हम कर सकते हैं विपिन? क्या आप एरे की साइज बढ़ा सकते हो रन टाइम पर? नो सर। है ना, एक बड़ा इसके संग रेस्ट्रिक्शन है कि वो पॉसिबल हमको साइज देना पड़ता है इनिशियली जब भी डिक्लेयर कर रहे हो, उसके बाद इंडेक्स पे हम काम करते हैं। तो एक बार साइज डिक्लेयर हो गया फिर आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते कि एक बार साइज फिक्स हो गया फिर उसको वापस कुछ ऑपरेशन करके आप परफॉर्म करना चाह रहे हो, या फिर कोई भी ऑपरेशन जो आप सोच सकते हो करेक्शन में, वो उसमें पॉसिबल नहीं है। होगा तो उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इतना कॉन्फ़िगरेशन क्यों करना है जब हमारे पास ऑलरेडी एक रेडीमेड फीचर है एरे लिस्ट। ठीक है, तो इसका बेस्ट फीचर है रिसाइजेबल कलेक्शन। इसको ऐसा हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक क्लास आ गई है। इस क्लास के अंदर मतलब कलेक्शन के सारे मेथड्स होंगे जो हमने जस्ट डिस्कस करे, ये वाले ऐड ऑल स्टफ, एंड देन लिस्ट के इंटरफेस होंगे इंडेक्स बेस। तो हम ये सारे फट से इंप्लीमेंट करते हैं कोडिंग में। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग ऑफ कलेक्शन पे। तो थियरी वाइज इतना बहुत है, इससे ज़्यादा पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं कलेक्शन थ्योरी में, कहानियाँ नहीं सुनानी मेरे को क्लासेस में। टॉपिक पे आते हैं, एरे लिस्ट डेमो और अल से टेस्टर। एंड ये एक और तरीका है कि आप क्या करो, क्लास पे जाओ और क्लास कर दो, बाद में रन टाइम पे आप पैकेज नाम दे सकते हो। तो ये रन टाइम पे इक्लिप्स पैकेज बना देगा, कॉम डॉट पैक डॉट कलेक्शन डेमो। अलग से नाम लिखना ताकि फिगर आउट हो सके, डिफरेंस ना हो कभी। कलेक्शन डेमो ये मेरे पैकेज का नाम है, फिनिश। तो एक पैकेज बन चुका होगा वहाँ पर और एक क्लास बन चुकी है। सो दैट्स हाउ इक्लिप्स वर्क्स। एक बार में वैसे कर सकते हो कि आपको नया पैकेज बनाना है तो डायरेक्ट क्लास बना सकते हो। ठीक है, अब हमें पता है हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एरे लिस्ट। एरे लिस्ट कहाँ से पिक करना है? फ्रॉम जावा डॉट यूटिल पिक करा। ई का नहीं पता क्या होता है, छोड़ते हैं। एरे लिस्ट इक्वल्स, और बहुत सारे वार्निंग्स आएंगे, उनको भी इग्नोर कर देना अभी। ठीक है, इसमें एक कंस्ट्रक्टर है, मतलब इसमें तीन चार कंस्ट्रक्टर होते हैं, थ्री होते हैं, एक बार देख लेते हैं। तीन होते हैं, तो हम पिक करेंगे फर्स्ट वाला, डिफॉल्ट वन। इतना क्लियर है, क्लास तो डेफिनेटली हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कर दिया। अब ये क्या किया हमने, एक कलेक्शन बना दिया है ऑफ लिस्ट टाइप। क्रिएटेड अ कलेक्शन ऑफ लिस्ट टाइप। क्योंकि लिस्ट टाइप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चाइल्ड है लिस्ट का, तो मैं लिस्ट टाइप भी कह सकता हूँ। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ लिस्ट टाइप। ओके, इसको ऊपर रखते हैं। ओके, डन। नाउ चेक करते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स है या इसकी कितना साइज है। तो हमारे पास एक मेथड ऑलरेडी है, साइज। लेट्स सी, थर्ड वन, साइज मेथड। तो क्या करना है, सिस आउट लगाएंगे, लिखेंगे एरे लिस्ट डॉट साइज, एंड हियर आई चेक टोटल एलिमेंट्स इन कलेक्शन। ओके, एलिमेंट्स। ठीक है, चेक करते हैं कितने एलिमेंट्स हैं। डेफिनेटली विल गेट नथिंग, सो इट्स जीरो। फाइन, डेफिनेटली वी अवर कलेक्शन इज एम्प्टी। हमने अभी तक इसमें कुछ ऐड ही नहीं करा, ये एम्प्टी है। सो टाइम टू ऐड एलिमेंट्स इन कलेक्शन। अभी हमारे पास सिर्फ कोड जावा है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस मैनुअली। कई बार हम ये चीज़ें फ्रंट एंड से लेते हैं, कई बार ये चीज़ें हम बैक एंड का जो बैक एंड ऑफ द डेटाबेस वहाँ से लेते हैं। सो अभी सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अलोन कोड एप्लीकेशन है, वो भी एक जावा फाइल है, तो उसमें हमको खुद ही मैनुअली डेटा एंटर करना पड़ेगा ताकि हम बाकी मेथड टेस्ट कर सकें। तो पहला तरीका क्या है, लिस्ट एम्प्टी है तो उसको ऐड फिल करते हैं। सो सिंपली गो फॉर एरे लिस्ट डॉट ऐड। अब देखो ऐड के बहुत सारे मेथड आ गए, हम पिक करेंगे फर्स्ट वाला, ई कह रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐड में एक्चुअली ऑब्जेक्ट था, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट है मतलब आप कोई भी टाइप डाल सकते हो, ये कभी एरर नहीं देगा आपको। तो मैं ट्राई करता हूँ पहले वन। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऐसे में मल्टीपल्स देता हूँ, मल्टीपल टाइप्स, जैसे कि एबीसी दे दिया, ट्रू फॉल्स दे दिया बुलियन टाइप्स, कैर दे देता हूँ, और फ्लोट दे देते हैं समथिंग रैंडम। वार्निंग्स आ रही है, देयर इज अ रीजन, विल सी दैट, बट फॉर नाउ you can see we have 5 elements in collection, 1 2 3 4 5. Let's check this again before. Okay, अब चेक करते हैं
after. Okay, so here we go. Let's run the code one more time, execute it, and now you can see it's printing 5. Okay, great. Can we check whether it has 1 or not? Yes, we can check. Does collection has 1? So क्या करेंगे, एक मेथड है ArrayList डॉट कंटेंस, अगेन इट टेक्स ऑब्जेक्ट टाइप कंटेंस ऑब्जेक्ट, मैं पास कर देता हूँ कंटेंस मेथड बुलियन रिटर्न करता है. सो इफ इट found this element in collection, it will print true or false accordingly. So 1 is definitely in the collection, that 1, and if I run this code, it says true. Let's try one more. Let's say 34.7. 34.7. This is also here, right? Let's run this one more time. Yep, true. Let's make it 40. It's not there, right? And if I execute this time, execute it, and it prints false, right? So that's how you can test whether your element is there or not. And this is really handy method when we write some logics. अभी लॉजिक का प्लेस ही नहीं तो हम लिख नहीं सकते, तो अभी हम देख रहे हैं मेथड्स कैसे यूज होते हैं. कुछ और ट्राई करते हैं, इंडेक्स ट्राई करते हैं. चलो, अब ऑलरेडी वी हैव 5 एलिमेंट्स. लेट्स इंसर्ट वन मोर एलिमेंट समवेयर इन बिटवीन और मे बी आफ्टर एबीसी. तो देखते हैं इंडेक्स जीरो बेस्ड क्या होगा. क्या कहते हो गाइस, ये दिस इज जीरो बेस्ड इंडेक्स और वन बेस्ड इंडेक्स? सर जीरो बेस. जीरो बेस्ड, चलो ट्राई करते हैं. सो आई एम गोइंग टू यूज ऐड इंडेक्स. So if it is 0, so 0, 1. Let me give 2. So 2 after, 2 means after ABC. और यहाँ पे XYZ दे देते हैं. And let's see element. First of all, क्या increase हुआ size के नहीं हुआ, या कोई error आएगा. Let's see this, run application. Size definitely increase हुआ इसका, right? 6 आ गया. After adding with index. Okay, running one more time, and you can say after adding index 6 total elements. क्या हम elements print कर सकते हैं? Print all elements यस in सर. collection. कैसे बताओ? सर या फिर हम सीधे साउट में एरे लिस्ट लिख के प्रिंट हो जाएंगे सारे एलिमेंट, या या फिर फॉर लूप से भी कर सकते हैं. ओके, ठीक है. साइज तो देख मैंने फॉलो लगा दिया, तो डायरेक्टली सर. ऑल एलिमेंट्स राइट. हाँ, या फिर हम फॉलो लगा सकते हैं, है ना? तो ये आप लोगों यस को पता सर. है, तो दैट्स गुड. सो एलिमेंट्स ऑफ, अरे पहले बता देते, मैं इतना नहीं पढ़ा था ना, फिर मुझे लगा थोड़ा सा आइडिया कम होगा. मेरा टाइम बचाओ, अपना टाइम बचाओ. चलो ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने, है? यस सर. चलो ठीक है भाई, पढ़ो, मजे लो. तो ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन. ओके, वर्किंग फाइन. अब बाकी जो मेथड्स आप ट्राई कर लीजिएगा, सारे आराम से काम कर जाएंगे. अगर बेस समझ में आ गया तो डेफिनेटली ऑल दिस मेथड्स विल वर्क. किस मेथड में प्रैक्टिस करना है एक्सेप्ट स्ट्रीम, तो मुझे बताइए, आइटरेटर में भी बताने वाला हूँ. तो 1 to 9 कोई और मेथड है जिस पर लग रहा है कि यार ये कैसे काम करेगा, इसमें या फिर लिस्ट में? लिस्ट में तो 3 मेथड है रिपीटेटिव सर में. एक बार रिटेन ऑल वाला बता दीजिए. अच्छा चलो ठीक है, रिटर्न देख लेते हैं. थोड़ा अजीब सा नाम भी है, पढ़ लेते हैं. रिटर्न का मतलब होता है उस चीज़ को रोक के रखना, ठीक है? हिंदी इंग्लिश का हिंदी बता रहा हूँ मैं. रिटर्न मतलब रिटेन रखना, उस चीज़ को रोक के रखना, वो जाना नहीं चाहिए, पकड़ के रखना है, ऐसा मान के चलो. तो एरलिस्ट में गए, रिटेन चेक करते हैं. अब क्या लिखा है, रिटेन ऑल. इसमें यह कलेक्शन जाएगा, एक पूरा कलेक्शन जाएगा, तब ये काम करेगा. इसकी फंक्शनलिटी यहाँ पे लिखा था आपको मैं. तो उसके पहले हम समझना पड़ेगा कलेक्शन कैसे पूरा पास करते हैं. तो रिटेन का थोड़ा सा टाइम दो, पहले हम कुछ और पढ़ते हैं, तब रिटेन पे आएंगे. यहाँ पे देख लो, retains only the elements in this list that are contained in the specified collection. अगर मतलब समझ नहीं आ रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी समझते हैं. तो एक रिटेन को यहाँ है ना, पे यहाँ लिख देते हैं. So retain means retains only the elements in this list which I have passed in the collection. ये ऐसे काम करता है. अभी पर इसमें कलेक्शन पूरा पास करना है, तो मुझे 2-3 कलेक्शन बनाना पड़ेंगे. तो एक काम करते हैं, लेट्स कीप दिस एग्जांपल एज इट इज.
मैं एक और कनेक्शन बनाता हूँ सिर्फ रिटेन के लिए, ठीक है। ArrayList टेस्टर, रिटेन टेस्टर, ठीक है। इस पे गए, ये सब खाली कर देते हैं, हटाओ यहाँ से। लेट्स रिमूव दिस होल स्टफ, लेट्स मेक इट सिंपल। और सिंपल करने के लिए, ताकि रिटर्न का फंक्शन समझ में आ जाए, लेट्स मेक सिंपल कलेक्शंस। तो मैं कर रहा हूँ, इससे 1 2 है, एक और लिस्ट बनाते हैं, उसमें मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग पास कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ उसको इंटीजर, इंटीजर। So we have two array list. One is one has integers and one will have string. Okay, so A B C, or let's make it simple, A B. Fine. I'm going to create one more collection. I'll say alphanumeric. Okay. That means it can have combination of list and integers and string type. Okay. So how it's possible? How can I combine both? By using one method which says add all. Add all takes collection type. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा array list alphanumeric डॉट, इंस्टेड ऑफ सेइंग ऐड, मैं जो एग्जिस्टिंग कलेक्शन उनको यूज कर लूंगा, जैसे कि ऐड ऑल। यहाँ पे पास कर दूंगा पहले इंटीजर, अपने ऊपर है, कोई भी सीक्वेंस ले लो, डजेंट मैटर। और यहाँ पे एड्रेस आएगा स्ट्रिंग। अब मैं प्रिंट करता हूँ लास्ट वर्ड कलेक्शन को, जिसमें अल्फान्यूमेरिक से। इतने किसी कोड में किसी लाइन में दिक्कत है तो बताओ, कहीं डाउट है? एक्सेप्ट दिस येलो लाइंस। फर्स्ट डे हम येलो लाइन रख देते हैं, कल हटा देंगे इसको, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, इसको क्लियर करते हैं, राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन। अब यहाँ पे क्या आया, 1 2 A B। तो अब क्या हुआ, इस कलेक्शन पे मल्टीपल कलेक्शन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ओके डन। सो वी हैव 4 एलिमेंट्स टोटल, 2 इंटीजर 2 स्ट्रिंग टाइप है। अब मुझे क्या करना है, पहले मैं रिमूव दिखाता हूँ, फिर रिटर्न पे आएंगे। मेरे पास अल्फान्यूमेरिक है डॉट रिमूव। रिमूव तो पता है, हम इंडेक्स यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। एक है रिमूव ऑल, नाम से पढ़ने वाला, रिमूव ऑल मतलब उस कलेक्शन के अंदर जितने एलिमेंट्स है सबको रिमूव कर दे भाई। तो मैं कह रहा हूँ भाई मुझे स्ट्रिंग नहीं चाहिए, आई एम गुड विद इंटीजर्स। लेट्स प्रिंट दिस। तो लाइन 23 कह रहा है कि रिमूव कर दो स्ट्रिंग टाइप। आफ्टर रिमूविंग स्ट्रिंग कलेक्शन, ये मेथड ही मैंने 2 4 बार यूज किया, ज़्यादा यूज नहीं हो पाया, पर हाँ कंडीशंस बनती हैं तब आपको कलेक्शंस यूज करने पड़ते हैं। यूज सारे हो जाएंगे मेथड, जितना टाइम स्पेंड करोगे प्रोजेक्ट्स में, जितना अपने एफर्ट लगाओगे, जितना पार्टिसिपेट करोगे, वर्किंग मिलती चल जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ आफ्टर रिमूविंग स्ट्रिंग कलेक्शन, तो क्या प्रिंट करता है ये, लेट्स सी। सो राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन। देखो स्ट्रिंग चला गया, 1 2 रह गया। ओके दैट्स फाइन। अभी क्लिक कमेंट करता हूँ, वरना फिर ये लिस्ट खाली रह जाएगी मेरे पास। अब रिमूव एड ऑल समझ में आ गया, रिमूव ऑल समझ में आ गया। अब रिटेन ऑल देखते हैं। रिटेन ऑल का मतलब क्या है, उसको बचा के रखना है, ठीक है। तो सेम फंक्शन चलेगी। मैं एरे लिस्ट का जो अल्फान्यूमेरिक है उसको यूज करता हूँ, लेट्स कॉल रिटेन ऑल दिस टाइम। अब मैं कह रहा हूँ भाई स्ट्रिंग को बचा कर रखो, बाकी सब उड़ा दो, ऐसा ऐसा कह रहा हूँ उसको मैं। आफ्टर रिटेनिंग स्ट्रिंग कलेक्शन, है ना। तो अगर स्ट्रिंग बच गया तो स्ट्रिंग ही प्रिंट होगा, वो जा चुका होगा। लेट्स सी, स्ट्रिंग ही बचा, जबकि मैंने पूरा प्रिंट करा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ स्ट्रिंग बचा, बाकी सब उड़ गया। तो रिटर्न का मतलब है कि जो आप पास करोगे आर्गुमेंट में, आपके कलेक्शन में से वो बचेगा, बाकी सब उड़ जाएगा। मनन, व्हाट अ पॉइंट? कोई और डाउट है? यस सर। चलो सर ठीक एक है। इस स्ट्रीम वाला स्ट्रीम मेथड। स्ट्रीम नहीं आएगा भाई, अभी तो स्ट्रीम में बहुत दूर है, पहले कलेक्शन तो पढ़ो। स्ट्रीम पे डिफरेंट, इट्स अ ह्यूज थिंग, वो कलेक्शन के पैरेलल है, उसकी अलग ही यूनिवर्स है। जैसे मार्वल की यूनिवर्स ओके है ना, सर। आयरन मैन, स्पाइडरमैन, तो वो आयरन मैन समझ लो एक उसकी अलग ही ओके कहानी है सर। पूरी, उसके बहुत सारे पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो स्ट्रीम में पढ़ेंगे जब हम थोड़ा सा कलेक्शन की बेसिक समझ लेंगे कि कलेक्शन क्या है। अभी इसके बाद हम जो बेसिक स्टफ्स है, स्ट्रीम का सीन ये है कि अगर मैं आपको स्ट्रीम अगर आज पढ़ाऊंगा तो आप 2 हफ्ते तक भूल जाओगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ।
तो हम क्या करेंगे, पहले जितने जो फ्लो है हमारा, कोड जावा खत्म करते हैं, फिर एडवांस में सर्वर जेएसपी खत्म करते हैं, फिर फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे, फिर फ्रेमवर्क खत्म करेंगे, और जब एंड आ जाएगा जहाँ पे स्प्रिंग बूट खत्म हो गया, उसके बाद मैं आपको स्ट्रीम पे पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो आपको ज़्यादा फ्रेश रहना चाहिए। आज पढ़ाने के बाद अगर मैं आपको 2 महीने में कहूँ कि स्ट्रीम की एक कोड लिख दो, आप भूल जाओगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है अभी। अभी कुछ टाइम बाद यहाँ के मेथड्स आप भूलना शुरू कर दोगे। जैसे ही हफ्ता निकलेगा और आप नए टॉपिक्स पिक करोगे, तो इसके मेथड्स ब्लर हो जाएंगे जब तक प्रैक्टिस करोगे, इवन प्रैक्टिस करके बाद ही भूल जाओगे। तो स्ट्रीम पे हम बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे, सबसे आखिर में, जब स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट चल रहा होगा। तो पैरेलली स्प्रिंग बूट में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, तब मैं आपको सिर्फ टास्क दूंगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं। मैं टास्क करता रहूंगा, साइड में पढ़ाता रहूंगा स्ट्रीम एपीआई। तो वो एकदम बिल्कुल फ्रेश फ्रेश रहेगा, तो कहीं भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, वो जल्दी रिकॉल कर पाओगे। आज पढ़ाऊंगा, कल भूल जाओगे। अभी तो अपना टाइम बहुत सारा है। तो स्ट्रीम एपीआई बहुत बड़ी चीज़ है। इनिशियली अगर आप आज भी कहो कि मेरे को जावा आती है, तो बोलेंगे आपको स्ट्रीम में कितना काम कर रखा हुआ है। जावा 8 में जबकि ये स्ट्रीम एपीआई यूज हुई थी, और आज जावा 21 आ चुका है मार्केट में ऑफिशियली। तो 21 है, डजेंट मैटर। अगर आज भी कोई इंटरव्यू लेगा, पहले पूछेगा स्ट्रीम एपीआई में कितना कंफर्टेबल, और दो चार कोड लिख के लिखवा लेगा आप लोगों से। तो बेटर है कि वो लास्ट में पढ़े। सो दिस वॉज अबाउट एरे लिस्ट, लिस्ट एंड कलेक्शंस। कल हम जो बाकी के क्लासेस हैं उनको पिक करेंगे, उनके फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा समझेंगे, और फिर उन पे एग्जाम्पल्स लिखेंगे। उनकी फंक्शनलिटी मतलब कि उनके किस हिसाब से उसका फीचर बनाया गया है, और क्या मेथड्स हैं, और किस कंडीशन में यूज करेंगे, वो भी देखेंगे। तो आज हमने लिस्ट देखा। लिस्ट एक कलेक्शन है जो कि एलिमेंट्स इंसर्ट कराता है, प्लस एक मैंने पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया था, मैं उसको भी कवर कर लेता हूँ अभी। लिस्ट में लिखा था, बताइए कहाँ लिखा था। लिस्ट में लिखा था एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, है ना, ये लिखा सेकंड पॉइंट। इसका मतलब पता है विपिन, मनन, किसी को भी? व्हाट डज इट मीन, ऑर्डर्ड कलेक्शन? आई थिंक सर ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है मतलब जैसे हम उसमें इंसर्ट करते उसी सीक्वेंस में प्रिंट करेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट्स राइट। और तो अब अभी, अनऑर्डर्ड मीन्स कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता, वो करेक्ट प्रिंट करेक्ट। करेगा। तो सेम एलिस में ऐसा होता है कि अभी हमने किस ऑर्डर में दिया है, 1 ABC, ट्रू, सी एंड 34.C। तो ये हमारा ऑर्डर है, हमने इस सीक्वेंस में एलिमेंट्स को एंटर किया है या ऐड किया है लिस्ट में। अब मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ, जो कि लास्ट में प्रिंट कर रहे हैं, तो देखिएगा सेम सीक्वेंस में आपको प्रिंट करेगा ये। 1 ABC, XYZ को हमने बीच में एंटर करा है इसलिए ऐसा हुआ, देन ट्रू, देन सी, देन 34.7। तो जिस सीक्वेंस में एंटर करोगे, इंस्टेड ऑफ इंडेक्स, क्यों इंडेक्स लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड कलेक्शन टाइप। इसको आप एक बार रन करो या 50 बार रन करो, आपके पास हमेशा यही सीक्वेंस मिलेगा। पर जब हैश मैप पे जाएंगे तो वहाँ सीक्वेंस डिफरेंट हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने आज कलेक्शन के कुछ स्टार्ट करा टॉपिक, थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा। और अब आपको क्या करना है, जितने मेथड्स हैं इनको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस रिमेनिंग मेथड्स फ्रॉम कलेक्शन। कलेक्शन है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट कलेक्शन बनानी पड़ेंगे आप लोग। तो एरेलिस्ट की क्लास बनाइए और सारे मेथड वहाँ पे ट्राई करिए। इन एरेलिस्ट, ठीक है। डिफरेंस बोल दिया एरे में, कलेक्शन में। थर्ड, इसी इमेज में देखोगे आप लोग तो एक जीरो दिखेगी, क्योंकि मैं उसका एग्जांपल नहीं बनाने वाला। तो इसमें कलेक्शन है लिंक्ड लिस्ट। तो डिफरेंस पता करिए, एरे लिस्ट वर्सेस लिंक्ड लिस्ट। ये सेम लिंक लिस्ट है जो आपने टेस्ट में यूज करी है। जो फीचर आप सोच सकते हो सेम फीचर इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड है एज ए क्लास। तो आप लोगों को ये वो खत्म करिए, ठीक है। सो जितना दिया उसको प्रैक्टिस करिए। कल हम जो रिमेनिंग क्लास हैं, जैसे कि सेट, सबसेट और हैश सेट, ये सब के एग्जांपल्स देखेंगे, इनके फंक्शन देखेंगे, क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं वो सब देखेंगे। और जितने बॉक्सेस नहीं हर के लिए वो भी आपको कवर करने हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ जो स्टिल इम्पोर्टेंट है। बट बिकॉज ऑफ टाइम मेरे को यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना है। मुझे जितनी जल्दी हो सके आप लोग को प्रोजेक्ट लेके जाना है, कि वहाँ पे आप जितना एफर्ट लगा सके वहाँ लगाइए। लिंक्ड हैश सेट, वेक्टर मोस्टली आस्क्ड इन इंटरव्यूज, क्यू, हैश टेबल, ये जो चार क्लासेस हैं ये दीज आर नॉट द ओनली क्लास गाइज। ये मत सोचिएगा कि बस यही क्लासेस है, बहुत सारे क्लासेस हैं। इस इमेज में सिर्फ वो क्लासेस जो मोस्टली यूज होती हैं, जहाँ पे आपको एक्चुअली
प्रैक्टिस करना होगा। तो ये ब्लू बॉक्सेस वाले पता नहीं कलर होंगे इसमें से, दीज वन यू गाइस हैव टू प्रैक्टिस एज होमवर्क। तो इनको प्रैक्टिस करिए, देखिए क्या इनकी फंक्शनलिटी, थ्योरी पढ़िए एटलीस्ट, बाकी तो होता रहेगा। ठीक है, एनी एनी अदर क्वेश्चन, कुछ डाउट, क्वेरी? इफ ऑल गुड देन वी कैन कॉल ऑफ टुडे। नहीं, चलिए नो फिर सर। कल मिलते हैं सेम सर टाइम। हाँ जी मनन। सर ये एक्लिप्स में एरर कैसे आ गया सर? एरर मेरे या तुम्हारे? नहीं नहीं सर, यहाँ पे मतलब एरे लिस्ट वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे हमने डिक्लेयर आ, किया है। आ रहा हूँ। कहाँ एरर है लाइन मतलब? नंबर 10। कहाँ है एरर? सर मतलब ये येलो वार्निंग है ये। पॉइंट शो है, वार्निंग बोला शो तो, कर रहा है। बोला तो वार्निंग हम कल देखेंगे, आज आने दो, कल हटा देंगे। ठीक है सर। ठीक है, कल हटा देंगे इसे। ओके।